So let's begin. So hello and welcome everyone to the first live podcast series by Mind, Mentoring in New Dimensions, an initiative by the alumni of MNIT Jaipur, where a diverse group of working professionals aim to provide one-to-one mentorship to college students for various career options like placements, competitive exams, robotics, finance, and much more. And we are demanding just a donation of anything above 100 to the NGOs which are partnered with us. So today is a very special day for us. We are bringing on the first episode of our live podcast series for IES, GATE, and core placement preparation with our esteemed panelists Yogesh Sharma, Vikalp Saini, and Shubham Goyal. All of the three panelists are currently IES officers and working with the Government of India, and also alumni of MNIT Jaipur. I would like to welcome all the three panelists. Thanks for joining with us. So, a brief introduction about everyone. Yogesh was graduated from MNIT Jaipur in 2018 in Civil Engineering Department and cleared the Engineering Services exam with an amazing All India rank of 8. He is also a ex-BARC officer and was placed in L&T during his campus placement. Vikalp Saini graduated from MNIT Jaipur in 2020 from Mechanical Engineering Department and cleared the Engineering Services examination with an All India rank of 23. He was also placed in Samsung Engineering during his campus placement and was also a part of the robotics lab of the college. Moving on to Shubham Goyal, he graduated from MNIT Jaipur in 2020 from Electrical Engineering Department and cleared the Engineering Service examination with an All India rank of 45 and also secured AI at 22 in GATE 2020. He was also placed in Cape Gemini during his campus placement and was a part of college football team, which of course has won many prizes for us. So, welcome guys again. So, all of the viewers, in this session, we will be mainly focusing on preparation of IES and GATE, along with discussion about placements in core companies and also some non-core companies. We will be first taking some general questions about the strategy and techniques of preparation. Then we will be taking some questions through the survey that we had circulated. And then we will be asking some live questions that will be asked by you guys through the super chat. So I would recommend please write on the super chat all your thoughts, all your queries. We will ask them for you through to our panelists. So guys, can we start the session? Sure, Utkarsh. Okay. Okay. So also before that, I want to tell everyone that we would have a special guest today. So please tune in to the entire session, and I trust me, it will be very beneficial for all the aspirants today. So my first question regarding ES, GATE, and core placements. First of all, let's begin with ES and GATE specifically. So in this series of podcasts, we asked our panelists the first question: what, how, and when. So what is IES? What is GATE for all the newbies and the juniors who are in the first and second year who just hear these terms? And also, how can we start the preparation? What is it? How can we start the preparation? And what is the right time when we start the preparation? So it's a general question. Anyone can take it up. Will you go with it, Yogesh boss? So basically, Yeah, Vigal. IES है हाँ Yeah. boss. हाँ बोलो उत्कर्ष विकल्प it's okay. So जो basically IES है, that is Indian Engineering Services, and basically government exam है, and it is conducted by UPSC, Union Public Service Commission, and basically जो central में departments होते हैं like Central Power Department, Central Water Department, previously railways also, they recruit direct engineering officers through this exam. And GATE is basically more of a aptitude test, full form भी यही है, graduate aptitude test, and basically वो exam लेते हैं for MTech admissions for PSUs and certain like for foreign universities also it will be beneficial for them. Okay. And योगेश बस आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? Can you please ask anyone from the guys who are listening that are they comfortable in Hindi, English, or the medium should be a mix of? आपको जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश जो भी सब चलेगा. Okay. So Vikalp has described almost everything. So engineering services, ESC, GATE, both are exams for mostly
For core engineering students, I would say, if you want to do a job in country and want to do in government sector, you might have any reason to work in government sector, or, or you like to work in government sector, anything. The ESC and GATE both give you opportunity to work in PSUs and engineering service government central government centers mostly. So through ESC, as in civil engineering, I would say most of the departments are central government. Like uh, back then, when I was in 2019, the railway was used to be the most popular, or I would say the most number of vacancies which used to provide. Right now, CPWD, Central Public Work Department, CWC, Central Water Commission, BRO, Border Organization, and Survey of India, Ministry of Defense. So these are the departments mostly in which you can work through engineering services exam. And I think for a civil engineer, these are the platform where we can really use our civil engineering. If you want to go in private sector, there are many companies. You can go in consultancies, you can go in construction company, you can open your firm. But if you want to work for government, then I think engineering services is currently right now topmost exam in this country. So GATE is mostly for PSUs like IOCL, HPCL, BPCL, and C-RITES for civil engineers, IRCON for engineers. So for these exams, you have to appear in GATE and get a good rank. Then you will have to appear in interview after that. Then they recruit through these GATE exams. Most of right now, some PSUs have also started to conduct their own examinations. Like last year, I guess when I was in 18. BHEL also conducted its own exam. So some PSUs might prefer their own exam, but 90% of the PSUs prefer by GATE only. So if you want to work in PSUs, then GATE is one of the best. If you want to go for higher studies, you want to go for masters in India, then GATE is the exam. Apart from that, BARC also, it also recruits through GATE. Like you have to clear some cutoff through GATE, then you have to appear in interview. बस उसका थोड़ा सा क्योंकि आप these are from civil engineering view. आप पहले पार्क में काम कर चुके हैं and you were an officer with Bhabha Atomic Research Center. Can you in brief in one line, what is the process, and because most of the people don't know about it. Okay. देखो BARC का मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हर साल लगभग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 20-30 वैकेंसीज आती हैं ऑल ओवर सारी ब्रांचेस के अंदर। देखा जाए तो 30 सिविल की आती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड CSE शायद, और इसी की भी कुछ वैकेंसी आती हैं, 5-6 ब्रांच की आती हैं। केमिकल की शायद, मेटलर्जी की भी आती है। हाँ, मेटलर्जी ये कितनी होती है? ये कितनी होती है? सारी ब्रांचेस की आती हैं। लगभग कितनी वैकेंसीज होती है ऑल इंडिया? मोस्टली सारी मिला करके लगभग 150 से 200 का बैच होता है पूरा सब लोग साथ में ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। नहीं, ज्यादा होती है एक्चुअली, 150 से 200 तो सिर्फ मुंबई में होती है। उसके और भी सेंटर्स है जहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल्स है उनकी। मुंबई में है, हैदराबाद में भी है। तो उसका एक सेपरेट एग्जाम होता है, सीटें होती है टोटल मिला करके। उसका एक सेपरेट एग्जाम होता है। उसका गेट भी होता है, सेपरेट एग्जाम भी होता है, दोनों होते हैं। आप गेट के थ्रू भी कट ऑफ, मतलब वो आधे बच्चों को गेट के थ्रू बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, आधे बच्चों को बार के एग्जाम के थ्रू बुलाते हैं। तो बार का एग्जाम क्या होता है, मेरा बार के एग्जाम के थ्रू हुआ था। एग्जाम में मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे थी, तो बार एग्जाम में 300 मार्क्स का पेपर होता है ऑलमोस्ट, और वो 3 घंटे में अराउंड 150 क्वेश्चंस कुछ करने होते हैं। नहीं, 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स आई गेस। तो उसमें भी नॉर्मल गेट के लेवल, गेट से भी इजी लेवल, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स का लेवल देख लो आप, उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। और कभी कभार टफ भी आ जाते हैं, वो तो डिपेंड करता है, सब डिफरेंस रहता है। वो कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उसके बाद मार्क्स आपने कितने एग्जाम में स्कोर किए वो मैटर नहीं करता, आपका इंटरव्यू होता है। और बार्क का इंटरव्यू इंडिया का सबसे बेस्ट इंटरव्यू होता है किसी भी कोर एग्जाम के हिसाब से। आप देखोगे टेक्निकल के हिसाब से मेरा इंटरव्यू चला था 70 मिनट्स तक। मतलब इतना अच्छा इंटरव्यू, कोर के आपको अपना नॉलेज देखना है, आपको अपनी स्किल्स देखनी है, आप बात जाके आना चाहिए, वो अच्छे अपने स्किल्स दिखा देते हैं। मतलब मेरा इंटरव्यू में स्कोर इतना अच्छा दिखा, उन्होंने मेरी भी काफी बेट बजा दी थी। तो वहाँ पे इंटरव्यू और फिर उनकी जॉब भी एक्चुअली जो होती है, तो वो साइंटिस्ट, मतलब बेसिकली यार आप साइंटिस्ट हो कंट्री के, तो उनको कोई मतलब नहीं है आपका कैरेक्टर कैसा है, आपको दुनिया का क्या नॉलेज है क्या नहीं है, उनको सिर्फ कोर से मतलब है। तो वो कोर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप जो बोलोगे उस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसको एंड तक लेके जाएंगे जहाँ पे आप हार नहीं मान लो। जब आप गिव अप कर दोगे तब जाकर के वो आपको छोड़ते हैं। तो बार्क का एक्सपीरियंस तो ही रहता है उसका, और भी उसकी अच्छी क्लास है, ऑफिसर जॉब है, और प्रमोशंस वगैरह भी अच्छे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है वहाँ पे भी, 5 डेज का वर्क होता है,
और आपको साइंटिस्ट बोलती है दुनिया, तो एक अलग प्राउड वो भी होता है, काम भी अच्छा होता है। वो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बस हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। एंड ये आई वुड प्रेफर कि आप सब अपने थोड़ा ब्रांच स्पेसिफिक आंसर्स दें इसका, कि एंड थोड़ा कंबाइंड आंसर कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर बोथ गेट एंड आईएएस। क्या इसकी कोई सेपरेट प्रिपरेशन रहती है, मतलब आईएएस की मैं अलग करूँ, गेट की मैं अलग करूँ, और सेकेंडली मैं कब शुरू कर सकता हूँ, और क्या क्या चीज़ें मैं सबसे पहले शुरू करूँ। अभी मैं एक न्यूबी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं कैसे जाऊँ, प्रिपरेशन शुरू कैसे करूँ। और ब्रांच स्पेसिफिक इसका आंसर दीजिए। शुभम तुम दो। ओके, इलेक्ट्रिकल में ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा स्टार्ट से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, लाइक फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मोस्टली उसे बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए। बेसिक्स अगर स्ट्रांग रखेगा तो उसे लाइक फ्यूचर में जब वो मेन सब्जेक्ट्स पे आएगा, लाइक मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जैसे जैसे वो मूव करेगा तो बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो उसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो एज ए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा डीप में अभी सब्जेक्ट्स को एनालिसिस नहीं करें, मतलब बेसिक्स पे स्ट्रांग रखें, लाइक जो नेटवर्क थ्योरी है वगैरह, उनकी नेटवर्क थ्योरी के जो बेसिक्स हैं, मशीन्स के थोड़े बहुत बेसिक्स हैं, उन पर ध्यान रखें। बाकी जैसे जैसे मूव टू थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर पे जाते हैं तो अपने जो ब्रांच के सब्जेक्ट्स हैं वो कॉलेजेस में भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे मूव टू मेन सब्जेक्ट जाता है तो उनको उनके भी बेसिक्स पे, मतलब बेसिक्स के साथ साथ उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाना शुरू करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइक जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट करो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर तुम एक बार देखते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यूपीएससी या फिर गेट किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तुम उसी डायरेक्शन में अपने सिलेबस को एनालिसिस करना शुरू करोगे। तो इस तरह मतलब ऑल ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस के साथ अपन कंटिन्यू कर सकते हैं एग्जाम की। ओके, विकल्प आप क्या कहना चाहेंगे मैकेनिकल के बारे में? मैकेनिकल के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे सेकंड ईयर में तुम मैकेनिकल शुरू करते हैं बेसिकली, तो उसमें बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स बहुत बेसिक पढ़ाए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत तुम्हारी फाउंडेशन बना देते हैं ये सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट्स करना बहुत जरूरी है। देन थर्ड ईयर में तुम्हें एक पैटर्न पता होना चाहिए कि यूपीएससी मतलब ईएससी का ये पैटर्न है एंड मुझे इस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है। एंड फोर्थ ईयर में वो डेडिकेटेड स्टडी की तुम्हारे पास नोट्स हैं और हर सब्जेक्ट का क्रक्स है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पॉइंट्स क्या हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तो तुम्हें कितना किस उस पर फोकस करना है। तो देन फिर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बहुत जरूरी है। जैसे प्री के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, मतलब थोड़ी चाहिए लेकिन इतना इन डेप्थ नहीं चाहिए कि तुम वहां पे सवाल में किसी अटक जाओ। लेकिन फिर मेंस में तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, इंटरव्यू में तुम्हें इंटरपर्सनल स्किल चाहिए। और मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे गेट और ईएस का एग्जामिनेशन है, बहुत सारा सिलेबस जो है कॉमन है, अराउंड 80% सिलेबस, 70 to 80% सिलेबस कॉमन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं गेट के लिए अलग प्रिपरेशन करूं या फिर उसके लिए अलग प्रिपरेशन करूं। हाँ, बस ये है कि थोड़ा माइंडसेट हमें अलग लेके चलना पड़ता है कि गेट में मेरे को न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना है एंड ईएससी में मेरे को कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा प्रिपेयर करना है। तो ये रहता है। ओके, सो क्या ये वैलिड हर ब्रांच के लिए है या फिर सिर्फ मैकेनिकल के लिए है? शुभम एंड बॉस। ये वैसे तो मैंने मैकेनिकल ओरिएंटेड बताया ज्यादा, बाकी शुभम और बॉस बताएंगे। यही मैं ये देखो ये बेसिक चीजें ही हैं, ये नॉर्मल आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की सबसे खास बात ये है कि इट्स नॉट लाइक जेईई एडवांस एग्जाम दैट यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट और यू नीड टू बी ओवर स्मार्ट फॉर एनीथिंग। यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस वेल। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी रैंक आ सकती है। आपको बेसिक समझ में आने चाहिए। इजी आपको मतलब कोई चीज टफ लग रही है आप उस पर थोड़ा काम करो। टफ तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ होता है नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस अगर आप देखोगे तो नॉर्मल चीजें होती हैं सब। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई टफ टॉपिक पे आपको फोकस करना, आपको सब कुछ कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, रिवीजन करना है टाइम टू टाइम। और प्रिपरेशन करने के लिए देखो आप पे डिपेंड करता है। मेरे साथ में ऐसे लोग भी हैं जो 2014 के पास आउट हैं, मेरे साथ में ऐसे लोग भी जो 2019 के पास आउट भी हैं। तो हर टाइप के लोग आपको मिलते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपकी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर अगर आप पे है, आपको जॉब जल्दी करनी है, आपको प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करना है, आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब आपको डिसाइड करने का, आपको लेते क्या चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में लोग अच्छा कर रहे हैं। कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? क्यों चाहिए? कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं ईएससी के लिए? 30 की एज तक आप दे सकते हो। अच्छा, 30 या 31 एज है आई गेस।
तब Okay. तक आप, हाँ तब तक आप कभी, और 21 एज में हर कोई ग्रेजुएट हो जाता है, 21 22 में, तो Okay. सिंपल रहता है। आपको जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए आपको अपने कोर्स में। सो ये जो बेसिक्स हैं, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि काफ़ी एक आज हम जानते हैं कि जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, पेंडेमिक की सिचुएशन है, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को इतना समझ नहीं आ रहा है। आई रिमेंबर द टाइम कि मैं सबको देखता था कि कोचिंग में सब लोग जाते थे, हम लोग 5 बजते थे, 4:30 बजते थे, हॉस्टल्स के सामने वो वैन्स और वो टेम्पोस खड़े हो जाते थे एंड सब बच्चे उसमें बैठ के फिर रात के 9 बजे आते थे कोचिंग पे भागते हुए मेस में। सो मैं उनसे आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट कोचिंग है, कितनी इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है, विद द क्वेश्चन दैट कोई फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि यार मैं तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दूँगा, और कोई 4th ईयर में स्टूडेंट है, वो कह रहा है यार मैं शायद क्या मैं लेट हो गया हूँ प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, मैं अभी 3 साल मैं थोड़ा किसी और चीज़ में इन्वॉल्व रहा, पर अब मुझे EAC करना है या मुझे गेट करना है। सो अब उसके लिए क्या, या फिर कोई ड्रॉप कर रहा है कि यार मेरी इंजीनियरिंग हो गई है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊँ। तो किसके लिए कितनी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट और कोचिंग इंपॉर्टेंट, इनका बैलेंस कैसे रख सकते हैं? सो ये ओपन टू ऑल क्वेश्चन है फिर से। ओके, देखो मेरा व्यू तो ये है यार, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोचिंग्स का भी मेन चीज क्या है कि आप स्टार्ट कर सकते हो गुड थिंग अगर आ रही है चीजें। कोचिंग आप तब ज्वाइन करो जब आपने देख लिया कि फर्स्ट ईयर, पहली बात तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो कोचिंग वोचिंग का सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इतना कर रहे हो तो फिर मतलब आपने अपनी लाइफ ही उसको बना दिया है कि मेरे को तो एक एग्जाम निकालना है। ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी एग्जाम निकालने के बाद भी आप सोचोगे कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। तो एक एग्जाम, उसको एग्जाम सोच के चलिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, उसको लाइफ नहीं मानना है। दूसरी बात, जब आप सेकंड ईयर में आ गए, आपको लग रहा है कि टेक्निकल आपको समझ आ रहा है लेकिन कम समझ आ रहा है, तो आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, तो आप कोचिंग कीजिए। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना आइडिया तभी लगेगा, आपका प्रिपरेशन लेवल क्या, आप खुश होते रहोगे मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मुझे सब आता है, पता चला कोई है जो और अच्छी स्पीड से काम किया जा रहा है, सब कुछ खत्म किया जा रहा है, तो आपको तो कॉम्पीट तो करना है ना। अब ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है, तो सभी की ऑनलाइन चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि यार इंडिया के आधे पार्ट के अंदर ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो लोग तो क्लास जाके ज्वाइन अटेंड कर रहे हैं, हम तो यहाँ घर पे बैठे। सबके लिए सेम रहेगा। आपको मार्केट में किसी एग्जाम के लिए मटेरियल है, मार्केट में एग्जाम मटेरियल भी सेम है, आप सेम चीजें पढ़ो, बस आप उसी में अपना एफर्ट पूरा दो, फिर कोई इशू नहीं रहता। चाहे ऑनलाइन के अंदर, हाँ देखो थोड़ा सा इशू है, कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हो इजीली, लेकिन अगर आपके पास में आपका रीजन है कि व्हाई यू वांट टू डू इज, मतलब व्हाई डू यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, तो फिर वो सफिशिएंट है वो रीडिंग करने के लिए। आप ब्रेक ले लो यार, 1 घंटे के बाद क्लास के बाद, 2 घंटे क्लास के बाद ब्रेक होता ही तो रूल होता है, वैसे भी कोचिंग्स के अंदर भी ब्रेक होता है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जिस तरीके से अच्छा लगता है, हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है। कुछ लोग दिन में 6 घंटे पढ़ के भी एग्जाम निकाल लेते हैं, कुछ लोग 12 घंटे भी पढ़ते हैं, वो आपको अपना माइंड करना है। कुछ लोग स्पीड पे काम करते हैं, कुछ लोग एक्यूरेसी पे काम करते हैं। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो 70% अटेम्प्ट करते हैं, उसमें 70% ही ले आते हैं स्कोर। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं 95% अटेम्प्ट कर दूंगा उसी टाइम के अंदर, लेकिन मैं 80% स्कोर कर जाऊंगा। ये तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड है, राइट? तो आपको तो उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बॉब के उसमें, कि जैसे तुम्हें अपना बेस्ट देना है, और कोचिंग भी एक लिमिट तक ही तुम्हारे साथ दे सकती है। हमें सेल्फ स्टडी करना तो एक बहुत ESC और गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, कि कोचिंग तुम्हें हाथ पकड़ के सवाल तो सॉल्व नहीं करवा सकती ना, केवल तुम्हारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर सकती है। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें एक शेड्यूल होना चाहिए तुम्हारे पास कि मेरे को आज ये खत्म करना है, मेरे को 1 हफ्ते में ये सब्जेक्ट खत्म करना है। तो वो एक शेड्यूल्ड स्टडी एक बहुत हेल्पफुल होती है इस ES या कोई भी एग्जाम क्रैक करने की जर्नी में। शुभम, आपका क्या एक्सपीरियंस मैं भी है? इस पे कुछ बोलूंगा, जैसे उत्कर्ष, या मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ शुभम आपसे भी, कि इसका जो कोचिंग रहती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्टडीज पे और आपकी जो CGPA आ रही है? देखो कोचिंग्स का इम्पैक्ट ये है कि जैसे ने बोला, कोचिंग तुम्हें सवाल तो सॉल्व नहीं करा सकती। कोचिंग एक गाइडेंस दे देती है कि तुम्हारा ये सिलेबस है, तुम्हें सिलेबस रेडी करके दे देती है, तुम्हें ये पढ़ना है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम सेल्फ स्टडी भी करना चाहो तो इट्स अ बेस्ट थिंग। तुम ऑलवेज बहुत से सेव हो जाएगा, और तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम ज्यादा डेप्थली नॉलेज गेन कर पाओगे। और अगर तुमने सेल्फ स्टडी किया है, बट सेल्फ स्टडी का ये है कि तुम्हें ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कि 2 दिन तक सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे थे, फिर अगले दिन से वही आवर्स कम कर दिए, बहुत
डीमोटिवेट हो गए कि हमसे तो होगा नहीं, कितना बड़ा सिलेबस है। कोचिंग बस ये है कि तुम्हें सारा मटेरियल एक जगह करके दे देगी और तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी कि किस तरह पढ़ना है, बट पढ़ना तुम्हें ही है। तो यू कैन डू बाय सेल्फ स्टडी ऑल्सो, तुम्हें ऑल द टाइम मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। दैट्स माय सीरीज। that brings me to my next question. What keeps you motivated? क्या लाइफ रहती है आगे ईएससी की, या क्या लाइफ रहती है गेट की जो मुझे मोटिवेट करे? मैं जब आईआईटी देता था तो मुझे लगता था यार अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे प्लेसमेंट्स होंगे। अब इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेटेड यू गाइस? तो Okay, तो जैसे देखो, मैं कोई भी विकल्प आप जाइए। हाँ विकल्प बोलो। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि हर हर जॉब के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हमेशा मैं ऐसे देखता था, मैंने जब प्रिपरेशन करना शुरू करा तो मेरे को आइडिया था कि मेरे को गेट से एक प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि कॉलेजेस में कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसे कोरोना का पीरियड आ गया है तो प्लेसमेंट थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो Right. हमें लगता था कि अगर कुछ ऐसा इन फ्यूचर हो गया तो मेरे को एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तो सिक्योर फ्यूचर के लिए मैंने सोचा कि मैं गेट करता हूँ और उसके थ्रू एक जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं होता एमटेक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन शुरू करी, ईएस के बारे में पता चला इसमें ज्यादा एडवांटेजेस हैं, ज्यादा प्रोज हैं रेदर देन कॉन्स। तो वो चीज आपको मोटिवेट करते हैं कि अरे इतनी फैसिलिटी मिल रही है मेरे को इतना अच्छी जॉब मिल रही है, एक जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि जॉब सिक्योरिटी मिल रही है और अच्छी एक रिस्पेक्ट वाली जॉब है। तो ये सब चीज फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं और मैं इस एग्जाम को क्लियर करूं। इट्स अ वेरी नाइस आंसर। बॉस, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? तो अभी सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए कंट्री के अंदर जॉब्स जो है ना बहुत ज्यादा हाईली पेइंग है नहीं। एक्चुअल में आप प्राइवेट सेक्टर में जाके देखोगे तो मतलब जो पैकेज जो रहता है, एलएनटी जो बेस्ट कंपनी आती है 6 लाख 6.5 लाख पैकेज देती है। और आप कितना ही कोर में काम कर लो, आपको कोर कितनी अच्छी लगती है, अल्टीमेटली आपको पैसा तो एटलीस्ट ऐसा चाहिए कि हाँ अपनी लाइफ स्टाइल जो आपको चाहिए आप जी सकते हो, डिसेंट लाइफ स्टाइल तो चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब, देखो लोगों का रीजन रहता है कि गवर्नमेंट जॉब कुछ लोगों को रिस्पेक्ट का रहता है, कुछ लोगों का ये पावर का रहता है, वो सबका अपना अपना रीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो चीजें चार्म करती हैं ऑब्वियसली। लेकिन मेरा जो रीजन था मेरा ये था कि मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग जो है मुझे अपनी बेस्ट में ट्राई करके देखता हूँ। मैंने एलएनटी में प्लेसमेंट हो गया सबसे पहले, तो मैं उससे खुश था कि ठीक है। फिर मैंने कहा चलो गेट आ रहा है 4 महीने बाद में गेट पे ट्राई करके देख लेता हूँ। थी क्योंकि सब बैच पूरा कोचिंग कर रहा था, सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल था या फिर कुछ हुआ था, पूरा बैच ज्वाइन कर रहा था, कोचिंग मैंने भी ज्वाइन कर ली, कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए वहाँ पे अच्छे। उसके बाद में मैंने एलएनटी में अपेयर हो गया, मुझे अपना पोटेंशियल चेक करना था, तो मैं ईएससी प्रीलिम्स की तैयारी में लग गया, वहाँ गेट की तैयारी में लग, लकीली फाइनल ईयर के साथ लिस्ट निकल गया। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये डुएबल है। और ऑब्वियसली एलएनटी से तो बेटर भी है वो, क्योंकि अगर आप 5 साल बाद 10 साल बाद भी देखोगे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंडिया में, तो इतनी ग्रोथ है नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे। मास्टर्स के लिए मेरा इतना मन था नहीं। अगर आप मास्टर्स लेवल पे अगर आप जाते हो, कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हो, तो ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देने की जरूरत है। मेरा ये था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था। ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब का ये था कि हाँ अच्छी जॉब चाहिए मुझे, ग्रेजुएशन के बाद चाहिए। गाइस, मैं आई वुड आस्क आवर व्यूअर्स कि आपके अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको सेशन कैसा लग रहा है बीच में, एंड जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे हम अपने पैनलिस्ट से वो कुछ आपके लिए वो सवाल पूछेंगे। सो प्लीज गाइस राइट डाउन योर क्वेरीज, योर थॉट्स ऑन द कमेंट बॉक्स। हाँ बॉस प्लीज। तो देखो जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो इंडिया में जैसे राइट नाउ या तो आप ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब या ग्रेड बी ऑफिसर जॉब जो फिर स्टेट में होती है, वो काफी अच्छी बात सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे से नहीं कर रहा है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर जॉब करनी है, तो काफी अच्छी जॉब है, इसमें आपको डिसेंट सैलरी भी मिलती है, डिसेंट लाइफ स्टाइल भी मिलती है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलती है, और वर्क लाइफ बैलेंस की ऐसी बात नहीं, आपको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज। मैंने एक्चुअली स्पोर्ट्स ही अभी यहाँ आने के बाद स्टार्ट किया प्रॉपर्ली, कॉलेज में मैं अच्छे से नहीं करता था, दोस्तों के साथ भी रहता था। अच्छी लाइफ स्टाइल आप फॉलो कर सकते हो, मतलब आपको खेलना है, आपको कोई भी हो फॉलो करनी है, आपको चांस मिलता है, एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में तो आपको मिलता है पूरा चांस। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था, मैं आप तीनों का प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि आप तीनों ही लोग कुछ ना कुछ कॉलेज के अंदर दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। एंड कॉलेज में ऐसा होता है कि लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बहुत आप
ईडी सेल में थे, शुभम आप फुटबॉल टीम में थे, विकल्प आप रोबोटिक्स क्लब में थे. सो क्या कैसे मुश्किल था या अच्छा था बैलेंस करना दोनों को? आपकी प्रिपरेशन भी थी, आपकी क्लासेस भी थी और आपका क्लब भी था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी थी, एंड फिर कॉलेज इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स. तो उन बीच में कैसे आप बैलेंस करते थे एंड किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे? शुभम मैं बताओ रोबोटिक्स. ये इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो कि ऑल द टाइम स्टडी तुम कर नहीं सकते कि कंटिन्यूअसली स्टडी 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 कर लोगे. तो तुम्हें अपनी एक फेवरेट चीज ऐसी होगी जिससे तुम्हें मतलब थोड़ा रिलैक्स करने को मिलेगा. वो मेरे लिए फुटबॉल था. मैं फुटबॉल खेल के अपने आप को रिलैक्स करता था. फिर उसके बाद एक था कि मतलब एक फिक्स टाइम में कितना फुटबॉल खेलना है, कम से कम इतना फिजिकल एक्टिविटी करना है. फुटबॉल नहीं कहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो फिजिकल एक्टिविटी के नाम में मैं फुटबॉल खेलता था. तो उसके साथ मेरा मतलब एक वो होता है ना बूस्टर, एज अ बूस्टर मुझे वो करता था स्टडी में. तो शाम को जाके फिर मैं आराम से स्टडी कर पाता. तो उससे ये होता है कि सारे टाइम एकदम स्टडी लगेगा तो फिर वो सब्जेक्ट भी पूरा स्टडी भी एक तरीके से बोरिंग मिल जाएगा. तो मैं यही बोलूंगा, एक चीज ऐसी रखो तो जो तुम्हें मोटिवेट करती है या फिर तुम्हें एज अ रिफ्रेश कर देती हो, तुम्हें पढ़ाई में मन लगा रहे उसकी वजह से. तो एक चीज ऐसी रखनी भी चाहिए. ऑल द टाइम स्टडी इज नॉट पॉसिबल है. बिकॉज जैसे आप रोबोटिक्स क्लब में थे तो उसका जो टोटल कॉन्सेप्ट था वो सारी प्रिपरेशन से पूरा अलग था. सो उसमें तो मतलब उसमें भी आपका माइंड रिफ्रेश होता था क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना है. क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो मेरा ऐसा सीन था कि मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में मेरा फर्स्ट ईयर से बहुत मन था कि मैं एक बार रोबोटिक्स में जाऊं और इस फील्ड को एक्सप्लोर करूं. तो एज अ एक्सप्लोरेशन के लिए मैं इस फील्ड में घुसा था. देन सेकंड ईयर तक मैं उसमें रहा एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी था. बट थर्ड ईयर में मेरे को आके एक चूजिंग पॉइंट था कि मेरे को या तो प्रिपरेशन करनी है या कंप्लीट टाइम इसमें जाना है. तो मैंने थोड़ा प्रायोरिटी सेट करी, एक बैलेंस सेट करने की कोशिश करी थी कि मैं थोड़ा थोड़ा करता रहूंगा, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं रोबोटिक्स को. क्योंकि ये है कि एक पढ़ाई से ये अलग चीज है. और जैसे शुभम ने कहा, एक तुम्हारा जब माइंड रिफ्रेश होता है ना इस कॉलेज में जाके, तो तुम्हारा पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है. तो इस चीज को करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व रहता था. लेकिन मेरा फिर थर्ड ईयर के बाद मेन फोकस जो है वो प्रिपरेशन की तरफ शिफ्ट हो गया था. तो ये सब ऐसे बैलेंस करना, ये तुम्हारी प्रिपरेशन जो कंप्लीट प्रिपरेशन है ना, वो तुम्हें एक बैलेंस करना भी सिखा देती है कि दोस्तों के बीच में और अब बाकी सब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बीच में तुम कैसे बैलेंस करो. Okay, so now I will be taking some questions that student asked us through the survey. So उन्होंने जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, या फिर जो मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ क्या वो बेस्ट हैं, क्या ये अच्छे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या फिर और आप कुछ अच्छे रिकमेंड कर सकते हो रिसोर्सेज को? बेसिकली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर मैं बात करूं तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो रिकमेंडिंग है, मेन पोर्शन उसी में से रहता है. तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है कि मैं सही बुक पढ़ रहा हूं या मैं गलत बुक पढ़ रहा हूं या कोई कंसेप्ट में एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहा है, कम तो नहीं पढ़ रहा, तो उसके लिए सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़े हुए कंसेप्ट लग रहे हैं कि हाँ मैं ये मेरे से हो पा रहे क्वेश्चन, तो आप सही ट्रैक पे हो. तो ये एक चेक करने का तरीका है. बाकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आपके पास कोचिंग है तो कोचिंग जो मेन करता है काम वो आता है आपका टाइम देता है कि एक आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देना. तो इतना जो आपका टाइम नोट्स बनाना, जो आपका टाइम इसमें एक्स्ट्रा निकलता है, तो कोचिंग आपको उस चीज में हेल्प कर देता है कि आपका टाइम सेव कर दिया उसने. लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर सकते तो आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे मैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करूं, पीके नाग है पावर प्लांट में, पीके नाग थर्मोडायनेमिक्स में है, एसएस रतन एमडी में है. तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सफिशिएंट हैं फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम, एनी टेक्निकल एग्जाम. ओके, एंड शुभम एनी इनपुट? देखो विकल्प का जो व्यू है वो एकदम एग्जैक्टली राइट है. उसमें कोई ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड करता है आप पे कितना टाइम है. अगर आप सेकंड ईयर में वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, थर्ड में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप स्टैंडर्ड बुक्स को दे सकते हो. अब आपने 4 साल बिल्कुल भी इस चीज के बारे में सोचा नहीं है, 1 साल प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे फिर आपको कोचिंग का मटेरियल देखना पड़ेगा क्योंकि कंसाइज मटेरियल चाहिए आपको. राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द टाइम है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग करो. दोनों से पॉसिबल है क्योंकि अब कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा आएगा. राइट. अल्टीमेटली चीजें तो वही है.
वो कंसाइज मटेरियल आपको कोचिंग के मटेरियल में मिल जाएगा, वहाँ पे आपके पास में टाइम कम है, तो आउटपुट जो है बेसिकली वो आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता होना चाहिए कि कैसा क्या हो रही है और आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कोचिंग मटेरियल से, मुझे नहीं मिलता था कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है सिविल का, या फिर हाईवे इंजीनियरिंग है, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो, मुझे उनके अंदर क्वेश्चंस होते थे कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो मैं उनके लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता था। जो सब्जेक्ट मेरे फेवरेट नहीं होते थे उसके लिए कोचिंग का मटेरियल उठाता था, उसको खत्म किया, निपटा, वो बस। तो सिंपल Okay. है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन चीजों में। Okay. जैसा योगेश बोस ने बोला है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती है फेवरेट जो तुम्हें चाहिए कि उसमें डीप नॉलेज Yeah. चाहिए, तो वो बुक से ही निकलते हैं। जैसे मेरी भी सेम इलेक्ट्रिकल में कुछ सब्जेक्ट थी, लाइक पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं भी उन्हें स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की प्रेफर करता था, ना कि नोट से, क्योंकि वो नोट जैसे कोचिंग वाले नोट्स बनाते हैं ना, तो वो एज ए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं कि एग्जाम ना कितना, लेकिन जो बुक्स में होता है वो ऑल ओवर होता है, वो जीरो ग्राउंड जीरो लेवल से उठा एक के ओवरव्यू एंड तक टाइप का लेके होता जाते हैं, है, तुम्हें सारा नॉलेज मिलता है। वो एक ओवरव्यू होता है ओवरव्यू। तो सारा मिल जाता है, तुम्हें पढ़ने में भी मजा आता है। बट तुम्हें टाइम पे डिपेंडेंट है, इफ यू हैव टाइम देन यू कैन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है देन यू कैन गो फॉर द स्टडी मटेरियल दैट प्रोवाइड बाय द कोचिंग्स। ओके। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा ये लोगों ने पूछा हमारे सर्वे में कि विल प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द जॉब्स। हम अभी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं प्रिपरेशन पे, बट ये एक यू नो लोगों के अंदर एक डर है कि यार अभी मैं प्रिपेयर तो कर रहा हूँ, मान लो जॉब्स ही ना हो। एंड सेकंड, चलिए पहले इसी सवाल पे आते हैं, छोटा कोई आंसर इस पे। देखो, प्राइवेटाइजेशन से आपको, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो आपको फोकस जो होना चाहिए, आपको कोर के नॉलेज पे फोकस होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, कितना सीख रहे हो। उसके बाद में इवन अगर प्राइवेटाइजेशन भी होगा तो अल्टीमेटली सिविल इंजीनियरिंग में ले रहा हूँ तो काम तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग में ही करना है। अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग अच्छी लगती है तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि एमबीए वगैरह भी करते हैं लोग, मास्टर्स वगैरह, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोर अच्छी लगती है तो मेरा मेन फोकस ये होना चाहिए मुझे कोर समझ में आ रही है। प्राइवेट भी हो गया तो इंडस्ट्रीज तो वही रहेंगी, पे ग्रेड का कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हो सकता है कम हो सकता है, लेकिन फिर वो ऑब्वियस सी बात है बाद में ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो। तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट दैट बैड, मतलब आप कंट्री के हिसाब से देखोगे तो जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइवेटाइज चीज को तभी किया जाता है जब एफिशिएंसी कम होती है किसी चीज की, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अभी भी कंट्री के अंदर काफी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एफिशिएंसी कम है, तो गवर्नमेंट तो स्टेप्स लेगी आगे, जितनी पॉपुलेशन है अभी ये सब स्टेप्स तो होंगे। बस आप अपने नॉलेज, अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करें। कॉलेज के अंदर अदर इन ग्रुप से इन्वॉल्व होना इसीलिए जरूरी है, आप नए लोगों से मिलते हो, नई चीजें करते हो, आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे चारों ओर, नए नए लोगों से मिलोगे, एक्सप्लोर करोगे तो ऐड हो। वो इसीलिए है कि दूसरे ग्रुप्स को ज्वाइन करने से, क्लब्स को ज्वाइन करने से टाइम वेस्ट होता है, ऐसा कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अच्छा। अल्टीमेट गोल तो आपका अच्छे डिपार्टमेंट में काम करना है, अच्छा काम करना है। Correct. So this brings me to the very big aspect of this talk जो हमने शुरू किया है कि कैसे IES और गेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अब फोर्थ ईयर में कंपनीज भी आ रही हैं, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए मैं बैठना चाहता हूँ। सो कितना मेरा जो IES और गेट का प्रिपरेशन है वो मुझे हेल्प करेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि क्या मुझे और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम माई रेगुलर IES एंड गेट कोचिंग मुझे कितना एक्स्ट्रा प्लेसमेंट के लिए करना पड़ेगा। एंड थर्ड, जो एप्रीहेंशन मैंने अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा देखा है कि कभी कभार लोग थोड़े बैकवर्ड एरिया से आते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, एंड उनको लगता है कि यार अभी कंपनीज आएंगी, वहाँ इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, हमें इंटरपर्सनल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है वो और कैसे उन ब्रश अप कर सकते हैं? तो ये 3 पॉइंट्स में प्लेसमेंट्स के बारे में आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू वर प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज। सो फॉर मी जो सीन था वो कुछ ऐसा था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप टेक्निकल एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, या फिर जैसे बॉस ने कहा, अगर आपके तुम्हारे कंसेप्ट में, कोर कंसेप्ट में तुम्हारी पकड़ है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो ऐसा नहीं है केवल एग्जाम में फायदा देंगी, वही सेम चीज आपको प्लेसमेंट में भी फायदा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जॉब तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर वाली जॉब करनी है ना, तो नॉलेज उन्हीं एस्पेक्ट्स की होनी चाहिए। तो अगर आपके उस पर नॉलेज है तो आप एग्जाम भी निकाल सकते हो, आप प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। जो एक्स्ट्रा मेरे को लगता है कि करने की जरूरत है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि बैकवर्ड एरिया वगैरह, तो उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो ES और गेट से एक्स्ट्रा करनी पड़ती है कि इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़ी डेवलप करनी पड़ती है। तो कि जैसे HR के टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो टेक्निकल में तो मेरे हिसाब से तुम कहीं फंसोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोर नॉलेज है
तो you will definitely grab a good job. सो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स है? मैं शुभम आपसे भी पूछना चाहता हूँ बिकॉज यू वर प्लेस्ड इन अ नॉन कोर कंपनी केप जेमिनी, सो आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसे था एंड आपकी जो प्रिपरेशन थी उसमें क्या हेल्प किया उसने आपको? देख, जैसे तुमने बोला कि बैकवर्ड इलाके से बहुत लोग हैं, सेम मेरा भी यही सीन था यार। मैं भी 10+2 तक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। जब मैं Right. फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन किया था कॉलेज, तो मुझे बिल्कुल इंग्लिश समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये है कि जो तुम्हारे बैचमेट्स हैं, अगर तुम दोस्त उस तरह के बनाओगे कि जो थोड़ा राइट, थोड़ा यूज करते हैं वर्ड्स को, तो मैंने उन वर्ड्स को ग्रैब करके धीरे धीरे मेरी स्पीकिंग स्किल्स ऑल्दो अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंपनी के लेवल तक पहुंच जाती है कि इंटरव्यू तुम दे पाओ। तो मतलब दोस्त इस तरह के बनाओ, या फिर जो क्या बोलते हैं, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। जैसे कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। जब अपने बहुत सारे क्लब में ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो फ्लुएंटली इसमें बात करते हैं, तो तुम्हें भी लगेगा कि मैं भी इनसे इस तरह बात करूँ, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स डेवलप होंगी। तो प्लीज इसी तरह मेरा स्पेसिफाई थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। और प्लीज जैसे स्पेसिफाई तुमने द बोला कि नॉन प्लीज स्पेसिफाई द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिकॉज हमारे यहाँ कई लोग हैं जो टीवी सीरीज देखने को भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मानते हैं, सो प्लीज स्पेसिफाई सम ऑफ देम कि आपको क्या अच्छा ये एक्स्ट्रा यार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव है। मेरा मेजर तो यही था, मेरे फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरे जो सीनियर्स थे, बहुत सारे डासा वाले सीनियर्स भी थे, तो मेरा इंटरेक्शन बहुत रहता था उन लोगों से। मैं बात भी करते थे वो लोग, तो मैं उनको सुनता था बस, ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उन पर ज्यादा बात कर पाता। प्लीज लेकिन बहुत सुनने में सही। ही थोड़ा आता है ना कि एक वर्ड्स को ग्रैब करना, तो उसी से मेरा थोड़ा डेवलप हुआ है। और भी मैंने अलग अलग लाइक एक दो रोबोटिक्स के भी मतलब हुए थे इवेंट्स, तो मैंने उनमें भी पार्टिसिपेट किया। जैसे क्विजेज वगैरह होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करता था। कुछ इवेंट्स तो में ऑल्दो हमने भी मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेट इवेंट्स किया था में साथ में। पार्टिसिपेट किए, सर्टिफिकेट, हाँ साथ में पार्टिसिपेट किए। तो वो ऐसा होता है कि जितने ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, इतने नए लोगों से मिलोगे ना, तो नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मैंने उन चीजों से ही मतलब अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा डेवलप किया है। और जैसे तुम बोल रहे हो कि नॉन कोर में प्लेसमेंट, या मेरा सेकंड ईयर तक मेरा भी इंटरेस्ट, मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट था। मैं करता था कोडिंग अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन बाद में जब कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो मेरा भी लिंक टूट गया। लेकिन ऐसा था, मुझे जो इनकी सूडो कोड्स वगैरह जो होते थे, वो मुझे पता था कि किस तरह कोडिंग होती। तो मेरे से इंटरव्यू में भी उसी तरह क्वेश्चन पूछे थे, और अच्छा, टेस्ट में भी वही आया था। तो मेरा कैपजेमिनी में हो गया था। सो मैंने मेनली कोडिंग पूछी गई थी कैपजेमिनी एज अ आपसे। बैकअप रखा था। कोडिंग कुछ ऐसा कोड करवाया नहीं था, सूडो कोड थे हाँ, वहाँ। सूडो कोड्स नहीं थे, वो मुझे पता कि मैंने सेकंड ईयर तक कोडिंग की थी। तो ओके, उतना मुझे आता था कि तो मैं सूडो कोड थोड़ा एक दो दिन पहले पढ़ना भी शुरू कर दिया था मैंने, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कैपजेमिनी में। बहुत सारी वेबसाइट होती है तो मैं बता देती है पहले से कि इस तरह कैपजेमिनी का इस तरह का पेपर होता है, इस तरह का इंटरव्यू होता है। तो मैंने पहले से एक दो दिन पहले से ब्रशअप कर लिया था उसमें क्या क्या पूछते हैं। तो ये सब मेरे को हेल्प किया, मतलब इंटरव्यू के अंदर भी और एग्जाम जो इसका पेपर होता है उसके अंदर भी। ऐसा कोई ओके। दिक्कत नहीं आती इंटरव्यू में भी। मतलब जो इंटरव्यूअर था वो उसको ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्का फुल्का था। मैं हम्बल कर रहा था, ऑल्दो फिर भी उसने मुझे मतलब ग्रांट किया कि चलो ठीक है। तो समझ गया कि उसे, इस बंदे सो को इट्स सो अगर फ्यूचर में कुछ कोडिंग स्किल्स सिखाई जाएगी तो वो पे सीख कर लेगा। लेगा। सो मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरव्यूज के साथ है, ट्राई मुझे मार। ऐसा लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। सो मैं सिर्फ ये प्लेसमेंट में नहीं पूछ रहा, मैं जो आईएएस के लिए जो लास्ट में इंटरव्यू रहता है, अब हम थोड़ा सा उस पर आते हैं। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेक अप सम क्वेश्चन फ्रॉम द सुपर चैट। एंड उसमें लोगों ने, जैसे एक अनुराग मिश्रा ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन गेट PSU एंड IES एंड बार कैन बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली? सो बॉस भी आपने तो सभी कुछ क्लियर किया हुआ है, तो कुछ क्या ये साइमल्टेनियसली क्लियर हो सकता है? Yeah, preparation. हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली 100% देयर इज नो डाउट ऑन दैट। आपको प्रिपरेशन जो भी बेस्ट एग्जाम के टॉपिक्स रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लाइक गेट और ये कुछ 10 to 20% का डिफरेंस होता है। बार के अंदर मोस्टली चीजें वही होती है। आपको सब कुछ कवर करना है। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम स्पेसिफिक आप थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। आप ओके, आराम से कर सकते हो। बार की भी, ईएससी की भी, गेट की भी, तीनों एग्जाम आप कर सकते हो। आपको साइमल्टेनियसली। एग्जाम से, जैसे गेट का एग्जाम आ रहा है तो आपको पता है कि वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देना है आपको। हम्म, आपको केएलसी का यूज वहाँ पे, ऑनलाइन केएलसी यूज सीखना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके लिए आपकी 2 महीने पहले प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। आप बताए ईएससी प्रीलिम्स में केएलसी यूज कर सकते हैं, तो आपकी हाथ की स्पीड जो है अच्छी हो जानी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड जो है आप उस पर फोकस करोगे। मेंस के टाइम पे आपको केएलसी यूज कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। नॉलेज आपका अभी भी सेम ही है,
बट जो स्किल्स जो है डिफरेंट, हर एग्जाम के लिए अलग रिक्वायर्ड होती हैं, आपको उन पे काम करना होता है बेसिकली, और So, बाकी सब सेम है। या एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये सर्वे में पूछा और अभी भी पूछ रहे हैं लोग, कि गेट तो मेरे ख्याल से हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए होता है, एम आई राइट? बी एनीथिंग, लेकिन आईएएस कौन सी ब्रांचेस? या सॉरी विकल्प। आईएएस बेसिकली 4 ब्रांचेस के लिए होता है: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको उस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको केवल बीटेक डिग्री चाहिए, आपको उस फील्ड में डिग्री नहीं चाहिए। यानी ऐसा है कि मैं चाहूँ तो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर दे सकता हूँ, तो कोई मेरे को मना नहीं करेगा या कोई मेरे को रोकेगा नहीं। जैसे हमारे एलुमनाई भी हैं एमएनआईटी से, जिन्होंने शायद दानिश बॉस हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में उन्होंने बीटेक करी है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने ईएससी क्लियर करा। ओके 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 Yes, yes. ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यू नो कि गवर्नमेंट जॉब में मैं जा रहा हूँ, एंड यू नो सब लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी तो है, बट यू नो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मेडियोक्रिटी, एंड दैट्स व्हाई यू नो योगेश वाज मेंशन कि प्राइवेटाइज हो रही है जॉब्स। सो क्या किसी का माइंडसेट है कि किस माइंडसेट का आदमी प्राइवेट जॉब चूज करे या गवर्नमेंट जॉब चूज करे? ओके, अभी देखो जिस तरीके का अभी वर्किंग एनवायरनमेंट जो हो रहा है, जो गवर्नमेंट नई पॉलिसीज जो आ रही हैं, उसके बाद में आपको अभी जैसे प्रमोशन वगैरह है, गवर्नमेंट जॉब में टाइम वेस्ट है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आफ्टर सम टाइम ये सब चीजें हट जाएंगी आपका, क्योंकि अभी भी कुछ गवर्नमेंट जो कुछ जैसे कुछ ऑफिसर्स वगैरह हटाए गए हैं, आई गेस मतलब लास्ट ईयर हुआ था, जिनकी रिपोर्ट वगैरह ज्यादा बेकार थी। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब सिक्योरिटी को कुछ भी नहीं कर रहे हो, वहाँ पे पूरा बिल्कुल से एकदम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भी गवर्नमेंट आपको खिला देगी। हाँ मतलब टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने स्किल्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। और जिस तरह की जॉब्स जो है अभी मोस्टली क्या है कि जो वर्कफोर्स कम कर दिया गया है मोस्टली जॉब्स के अंदर, तो आपको स्किल्स तो रिक्वायर होंगे, आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर है, गवर्नमेंट आपको काफी कुछ दे रही है, वर्क बैलेंस प्रॉपर दे रही है, तो आपसे काम भी वो अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हम लोग हैं तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब में तो हम लोग रिसर्च पे काम नहीं कर सकते। आरडीएस और रेलवेज के डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपको मौका मिलता है। आप बाहर जाना है, रेलवे की स्टडी करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं डेपुटेशन में 5 साल के लिए, रेलवेज में वो मौका मिलता है। तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, जल्दी आपको ग्रो करना है तो में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। So, guys, we are done with most of our questions, and in between, I want to, discuss something about us, Mind. So, Mind, as I, mentioned in the starting, that it is an initiative by the alumni of MNIT Jaipur, who are, a diverse group of alumni who are willing to give you one-to-one mentorship for various career fields, and will be asking for only donations of anything above ₹100 to some of the NGOs which we are linked to. So I'll be giving a short demo of our organization. Okay. So Mind has created a website. So Mind has created a website known as go.onesub.com/mind. Is my screen visible, guys? Okay, so this is a website in which we have mentors from all the fields. You can see the tags which are above, which shows from civil engineering to chemical engineering to mechanical engineering to machine learning, entrepreneurship, students, alumni who are placed in FANG companies, alumni who were related to robotics, mobile app development, every aspect, be it UPSC, be it defense, we have mentors from any field. So if you want to go to any field and you have doubts in it, at what should be my first step, or I'm stuck it somewhere, this is the place. Book your first meeting with any of the mentors which are being listed here, and of your choice, whichever field you want to go in, and you can have a 30-minute one-to-one interaction with those mentors. And this is not a one-time thing. You can book any number of meetings with any number of mentors anytime. And you have, our first meeting is free, but following the first meeting,
next meetings we will be charging only rupees 100 or anything above 100 to the NGOs which are listed with us. So you can find the NGOs here. These are some of the NGOs which are listed with us. You can find all the support relief funds which are especially working for COVID and COVID times. So our associated NGOs are Jago and Amar Seva Samiti, and some of the pan-India NGOs like Give India Foundation, Akshay Patra, Hemkund Foundation, PM CARES Fund. So you can attach the UPI transaction to them, and the bank account details are also listed here. So I'll briefly explain you the process in which you can book a meeting with us. So for example, that you are from electrical engineering department. Okay, so I'll go and I'll find where is electrical engineering department. Electrical engineering, and I want to discuss, okay, I want to go for core placements. So I found that, okay, Vivek Sharma is related to core placements. Shivam Goel, who is one of our panelists today, is linked with core placements, and also, IES and GATE. So I'll go to his profile. I like his profile. I'll go to it. See the available time slot. I see that he is available on these time slot. Whichever time slot is suitable to you and him, you can book a meeting. And you have to just give your details here and submit. In this a process of 2 minutes, you can have a 30-minute interaction, which will I strongly recommend it. It is very fruitful. You can have a trailer also on a YouTube channel. All our social media handles, and you can contact us in any way. All our social media handles are being listed in our public profile. So this is a YouTube channel. You can find a trailer there of our one-to-one interaction. You can also follow us on Instagram, Facebook, LinkedIn, and also mail us at our email ID contact.mind.us@gmail.com. And we have also various dedicated pages for UPSC and various other government elite jobs and MBA also. So for UPSC, we have UPSC and other elite jobs like DRDO, BARC, etc. We have all our mentors listed here. And for MBA, if you want to go for CAT or MBA or GR or GMAT, you have all your mentors here. So I would strongly recommend you guys, the placement session is just going to start. The online classes have not been very beneficial to everybody. So just come visit our website and book your first meeting for free. So that was all from us through Mind. And we also have our special guest today, and I'll be asking him to join. So today we have गोपाल राठौर सर. गोपाल जी हमारे साथ हैं, ये अमर सेवा समिति से हैं. सो अमर सेवा समिति, जैसे मैंने दिखाया कि एक NGO है जो हमारे साथ लिस्टेड है. एंड मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक NGO नहीं है, एक संस्थान है जहाँ पे बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल नहीं, उनके सारे इमेंसिपेशन, पूरा उनके लिए पूरी नर्चरमेंट और पूरी ग्रोथ है उनके लिए. सो गोपाल जी, स्वागत है आपका हमारे सेशन में. सो प्लीज़ थोड़ा बताइए अमर सेवा समिति के बारे में. सभी को जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप इसी तरह समाज के लिए काम करते रहे, यही मेरी आशा और अभिलाषा है. हम लोग जालाना कच्ची बस्ती के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के साथ उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं. और ये प्रयास मैं 2007 से लगातार कर रहा हूँ. और अभी जो बच्चा हमारे पास LKG से था, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष का छात्र है. 2 बच्चे होटल मैनेजमेंट कर लिया और 5 स्टार, एक तो रमाडा जयपुर में जॉब कर रहा है, एक गुजरात में राजकोट में जॉब कर रहा है. एक बच्ची ने IIT का हमने कोशिश करी थी, अब की बार वो IIT में 90% आए हैं उसके. अभी JEE में जो एग्जाम हुआ था उसमें 90% आए हैं उसके. हो सकता है आप लोगों की सबकी मेहरबानी से हो सकता है उसका IIT में सिलेक्शन हो जाए. हमारी यही बहुत बड़ी इच्छा थी, क्योंकि MNIT के स्टूडेंट हमारे पास पिछले 10 सालों से लगातार आ रहे हैं और ये बच्ची वो IIT में निकली है. ये MNIT का प्रताप है, MNIT के स्टूडेंटों का हौसला है और हिम्मत है. उस बच्ची को गाइड किया, पढ़ाया और वो बच्ची आज JEE में दो बार क्लियर हो गई थी, परंतु किसी कारण से 1-2% अब की बार उसके नंबर अच्छे आए
वो शायद उसको कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छी। बाकी अब भाई हम 13 बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तृतीय वर्ष में आ गए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उनको हमारा 2023 RS बनाने का सपना है और 11वीं क्लास से ही उनके हम तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू उनको पढ़ा रहे हैं। तो RS की कोशिश, RS नहीं बनेंगे तो कहीं कहीं जॉब में तो लगी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारे पास 160 बच्चे हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जाती और किसी प्रकार से गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं है। आज दिन तक किसी भी सरकार से कोई सहायता नहीं है, कोई CSR नहीं है। ये सब आप जैसे समाज के होनहार युवाओं की देन है, जिससे कि हम आज उसको लेके यहाँ तक पहुंचे। धन्यवाद आपका गोपाल जी। ये एक छोटी सी बात है जो मैंने आपसे सब निवेदन किया है। जय हिंद, जय हिंद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अभिलाषा करता हूँ आप इसी तरह से देश के लिए लगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गोपाल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काम कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत सीखना है अभी तो। आई होप कि हाँ हम भी आगे फ्यूचर में शायद सोसाइटी को हेल्प कर पाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद गोपाल जी। सो जैसा आपने देखा कि गोपाल जी एंड अमर सेवा समिति इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज़ डोनेट करिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड में सब लोग परेशान हैं, तो अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज़ आइए एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सब भी एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हम अमर सेवा समिति के साथ जुड़े रहेंगे एंड आपके कामों को और भी आगे लेके जाएंगे एंड आपकी जो जिस तरीके से मदद हो सकती है हम वो मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्था आपकी है, ये बच्चे आपके हैं और इनको आगे ले जाना ये आपकी ड्यूटी है। हम कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल, ये सब समाज के सहयोग से हम आज दिन तक यहाँ पहुंचे। जय हिंद, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने धन्यवाद। निकाला। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। So guys, as I had shown you, so this was a tour of our website, for the Minds website, and also जैसे गोपाल जी आए उन्होंने बताया कि हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है, तो ऐसे ही और ऑर्गेनाइजेशंस को आप मदद करिए, हमारे साथ मीटिंग बुक करिए, जैसे 1-to-1 सेशंस, जैसे सेशन आज हमने लिया, और अपने पर्सनलाइज्ड क्वेरीज पूछिए। ऐसे ही हमारे जो एलुमनाई हैं इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, तो जाइए अपनी मीटिंग बुक करिए उनके साथ, उनसे बातचीत कीजिए, पर्सनल क्वेरीज पूछिए, और भी आपको लगता है सिर्फ क्या नाम है करियर से नहीं, और भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप इनसे जाके बात कर सकते हैं। सो this was all, and so I think we are towards the end of our session. I want to ask you 2 questions to everyone. So I'll start with my first question कि what advice will you give to the do's and don'ts कि आप अगर इस ईयर में होते, हम हर ईयर को लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फिर आप पास आउट हो चुके हैं, इस ईयर में होते तो क्या करते और क्या ना करते? क्योंकि योगेश बॉस आई थिंक आपने 1 साल गैप लेके किया था एग्जाम, एंड विकल्प एंड शुभम आप डायरेक्ट 4th ईयर के बाद गए थे, तो आपका योगेश बॉस हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्रेशर रहता है आपका जब आप ड्रॉप करते हैं, एंड सेकेंड पार्ट कि हर ईयर अगर मैं इस ईयर में हूँ मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकता हूँ, और ऑल्सो मुझे क्या नहीं करना चाहिए? यस देखो, मुझे लगता है स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहले आप जेईई एग्जाम दे करके आते ही फिर अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के पीछे पड़ जाते हो, तो मुझे लगता है आपको अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। बहुत कुछ चीजें हैं जो आप सीख सकते हो, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। पहले से माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मुझे इसी चीज में ही जाना है। जब तक आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे, लोगों से मिलोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, क्या पता उससे भी कुछ बेटर चीज हो। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है। उसके बाद में अगर आप कोई स्किल्स आपकी वीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी वीक है, इंग्लिश आपकी वीक, आपको ऐसा लगता है हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मूवीज देखिए, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आप लोगों से मिलिए, आप क्लब्स ज्वाइन कीजिए, ईडी सेल है, रोबोटिक्स है, पोइट्री क्लब है, या फिर मतलब कुछ है, एक क्लब और भी है मैवरिक्स कॉलेज के अंदर जो राइटिंग या लिटरेचर का ग्रुप है, या तो वो सब ज्वाइन कीजिए। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपको एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपको अपने आप को इतना स्किलफुल, इतना सक्सेसफुल बनाना है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली रहे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और आगे आने वाले टाइम के अंदर
अभी रिसेंटली जो टाइम चल रहा है, जॉब्स वगैरह हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में कम हो जाए, या फिर किस तरीके का कितना कंपटीशन होता है, उसके लिए आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना है, आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना वो इम्पोर्टेंट है। बात आती है किसी एग्जाम के लिए, तो आप फाइनल ईयर के बाद में जब आप करते हो, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, लेकिन बात वही है आपके ऊपर कितना फैमिली प्रेशर क्या है। अगर आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है तो आप साथ में बाकी एग्जाम्स भी दीजिए, लाइक एएन वगैरह होते हैं, या फिर पीएसयूज के अलग से एग्जाम्स होते हैं, ऐसे एग्जाम्स में आप अपियर हो सकते हैं साथ में, आप उनको क्लियर कर दिए, लोग एक दूसरी जॉब निकालते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। तो डिपेंड करता है आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फैमिली कंडीशन आपको क्या रिक्वायर्ड मांग रही है, आपका अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस है। प्रैक्टिकल जरूर होना जरूरी है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो और आप एक ही चीज के पीछे पागलों की तरफ पड़ गए हो। आपको समझना है एक चीज के पीछे आप पढ़िए जब आपको लगता है कि हाँ ये डुएबल है आपके लिए, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, अपने स्किल्स के ऊपर साथ में काम करते जाना है। आपको एक एग्जाम को एग्जाम मान के चलना है, उसको लाइफ मान के नहीं चलना है, आपको अपनी जिंदगी उसके पीछे नहीं लगानी है, पूरी मेहनत लगानी है, वो सही है, लेकिन उसको आप लाइफ मान लेना कि ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एग्जाम आपकी ना तो लाइफ बना सकती है ना बर्बाद कर सकती है। एक क्वेश्चन है कि ये और भी विकल्प आई वुड लाइक शुभम भी इसमें पिच इन करे कि जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते थे, आप आज आपकी इतनी अच्छी रैंक है, लेकिन कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जिनको, या फिर और भी कलीग्स हैं जो आपसे ज़्यादा हो सकते हैं प्रिपेयर करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। सो क्या आप ऐसा समझेंगे कि क्या डोंट्स रहेंगे जो अभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? तो जो डोंट्स के अगर मैं बात करूं तो एक डोंट बहुत मेजर है कि आप अगर आप फोकस है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एक माइंडसेट है कि मेरे को एग्जाम निकालना है, तो आप किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होना। जैसे लोग मेरे पास आते थे कि चल विकल्प पार्टी करने चलते हैं, और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी तो पार्टी छूट रही है, लेकिन फिर वही लोग वापस आते हैं और ये बोलते हैं चल विकल्प तेरे नाम की पार्टी करते हैं क्योंकि तेरा आईएएस निकला है। तो ऐसा कभी नहीं है कि तुम रेदर देन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर चीज, तुम अपना फोकस और अपना माइंडसेट क्लियर रखना कि मेरे को अगर यही है तो करना है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे प्राइवेट में टॉप जॉब्स हो। और प्राइवेट जो लोग ऐसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही है या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। प्लान बी, जैसे बॉस ने बोला, प्लान बी होना कोई बुरी बात नहीं है, कि ऐसा नहीं है एग्जाम को एग्जाम मान के चलना है बहुत जरूरी। अगर ये ना हो, मैं इसी के पीछे पड़ा हूँ, मैं 7-8 साल 21 साल से लगा था और मैं 30 साल तक बस यूपीएससी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। कि आपके पास एक प्लान बी होना कोई बुरी बात नहीं है। और जैसे आपका अगर कोई सेटबैक है, जैसे फाइनेंशियली कोई सेटबैक्स है या फिर किसी के फैमिली प्रेशर सेटबैक्स है, तो रेदर देन उस चीज को सेटबैक्स, उस चीज को बूस्टर लेने की ज्यादा जरूरत है। वो अगर जैसे कि अगर मैं फाइनेंशियली थोड़ा वो नहीं हूँ, स्टेबल नहीं हूँ, तो और मैं और मेहनत करूँ इसको एज अ बूस्टर में, कि मैं और मेहनत करता हूँ, मैं फाइनेंशियली स्टेबल खुद होके दिखाऊंगा। या फैमिली प्रेशर है या कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि अच्छा ऐसा है, नहीं इसको मैं अपने बीच में नहीं आने सकता, प्रिपरेशन के बीच में मैं लेके चलता हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं और अच्छी ज्यादा मेहनत करूँ, मैं और ज्यादा अच्छा एग्जाम क्रैक करूँ और अच्छी जॉब लूँ। शुभम, आपकी कोई एंड रिमार्क्स? जैसे ये बोला या कल बोला कि जैसे बोला कि अभी की पार्टी के लिए या फिर किसी भी डिस्ट्रैक्शन के लिए रहना चाहिए कि हमेशा किसी को नो बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो दोस्त आएंगे पार्टी करने चलते हैं तो नो बोल सकते हैं। जैसे मैंने भी हमारा जब फुटबॉल का टूर्नामेंट था, एक इंटर थी, तो हमारे मुझे बोल प्रैक्टिस पे आधा करती हूँ, लेकिन मेरा ईएस और गेट का एग्जाम पत्र था, तो मैंने उधर भी मुझको मना किया था कि मैं प्रैक्टिस नहीं आ सकता, हो सकता है टूर्नामेंट में खेलूँ ही ना। तो नो बोलने में कभी घबराना नहीं, किसी को डिस्ट्रैक्शन को ऑलवेज अवॉइड करना है। जब एग्जाम टाइम आ रहा है तो उन चीज़ों को नो करके मतलब तुम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा लगेगा कि उसको अपन ने एक वो किया है कि सेक्रीफाइस किया है कि हम उसको नहीं कर रहे थे, इधर बूस्ट कर प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये बोल डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, मतलब फाइनल जो क्रूशियल टाइम हो तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड। सो विद दैट रिमार्क, काफ़ी अच्छा रिमार्क था। तो मना कर दो किसी को भी, भाई अभी नहीं, मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। सो ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड कल भी एग्ज़ाम है आई थिंक EAC का प्रीलिम्स, सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड ऑन दैट नोट we would be ending our session. Very thank you guys for coming to all the best to everyone. To our first podcast, and हमने बस शुरू ही किया था and आप लोगों ने बहुत हमारा हेल्प किया, so thanks a lot. And कुछ अगर आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
हम मतलब थैंक्स उत्कर्ष, यू आर Yes. थैंक्स उत्कर्ष, तुम काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये काम करते रहो यार। सोसाइटी के लिए जरूरी है कि कोई एक ऐसा इनिशिएटिव ले अपनी तरफ से कि जो बैकवर्ड से या फिर जो नहीं कर सकते उनके लिए तुम हेल्प कर रहे हो। इट्स अ गुड वर्क, कीप इट अप, इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। थैंक यू। Yeah, Utkarsh, thank you for providing us the opportunity to help anyone. Anyone need any mentoring, we'll be there for you guys. हम लोग की भी help किसी ने की है. We will by our Yeah. seniors, so we will be ready for your help anytime. You just need to make contact with Utkarsh, but personally also you can text us. I would say visit the website or anything. and book It will be the free. meeting. We'll love to help. अभी थोड़ा schedule. Yes, sir. कल आपका कुछ रिमार्क? हाँ, वो मुश्किल होता है अभी, मतलब बिजी रहते हैं तो कई बार शेड्यूल टाइट रहता है, तो आपको ये रहता है कि हाँ पर्सनली आप टेक्स्ट वेक्स्ट करोगे तो कई बार रिप्लाई करना हो जाता है, क्योंकि जो दिन भर क्लासेस वगैरह Right. ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, अभी पोस्टिंग के बाद तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, ये बहुत अच्छी चीज आएगी, इसके थ्रू आपको हर तरीके की हेल्प मिल सकती है टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके। एंड मैं भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू उत्कर्ष, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये। एंड जब भी कैसे भी किसी को भी हेल्प चाहिए, जूनियर्स हों या कोई भी हो, विल बी हेल्प एवरीवन। थैंक यू। Thanks a lot everyone. So in the last I would say that it's never too late, be it any field, be it IAS, be it IES, be it GATE, be it core placements, be it non-core placement, be it top-notch companies like Google, Facebook, Amazon. We have mentors for everyone, and just go to our website, book your meeting. अभी placement session बस शुरू होने वाला है, तो I know कि ये online में अभी सब लोगों को थोड़ा apprehension है कि आगे क्या होने वाला है. So to clear all your apprehensions, to clear all your queries, book your meeting now with Mind. So on that note, thanks a lot everyone, and bye bye.